میرا نام شہروز ہے۔ مجھے خواب آیا کرتے تھے، برے برے خواب۔ خواب میں جو دیکھتا تھا وہ اگر کسی کی حقیقت ہو تو شاید وہ برباد ہو چکا، لیکن پھر ایک دن مجھے یقین ہو گیا کہ وہ خواب میری ہی حقیقت تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہوا۔ اب میں آپ کو اپنی زندگی کے وقت میں کچھ پیچھے لیے جاتا ہوں، اس وقت میں جب میں بہت چھوٹا تھا، اور اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہوں۔ ہماری پوری فیملی تھی، دادا دادی، چاچو چاچی، میرے ماں باپ، میری 2 بڑی بہنیں۔ میں سب سے چھوٹا تھا۔ میری ماں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ میں گھر کا چھوٹا بچہ بھی تھا اور خاندان کا پہلا بیٹا بھی تھا۔ جب میں پیدا ہوا اس وقت میری دونوں بڑی بہنیں تقریباً جوان ہو چکی تھیں، اس لیے گھر میں میری آمد ایک خوشی بن کے آئی تھی۔ ہر طرف مسکراہٹیں تھیں، ہر چہرے پہ محبت تھی، اور میں ان سب کے درمیان ایک مرکز کی طرح تھا جس کے گرد سب کی توجہ گھومتی تھی۔ جب میں 6-7 سال کا ہوا تو میرے دادا نے ایک دن سب کو جمع کیا۔ ان کی آواز میں کمزوری تھی مگر الفاظ میں وزن تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اتنے عرصے بعد ہمارے خاندان کو وارث ملا ہے، اس لیے ساری جائیداد شہروز کے نام کروا دی جائے گی۔ اس بات کو سن کے میرے ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی، جبکہ چاچو چاچی خاموشی سے بیٹھے رہے، مگر ان کے چہروں پہ کوئی ناگواری نہیں تھی کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ ہمیشہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ گھر کا ماحول اس اعلان کے بعد بھی ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا۔ ہم سب ایک ساتھ بیٹھتے، ایک ساتھ کھاتے پیتے، باتیں کرتے، ہنسی مذاق کرتے۔ ہمارے گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ہر رشتہ اپنی جگہ مضبوط ہو اور ہر دل دوسروں کے لیے نرم ہو۔ الگ الگ پورشن ہونے کے باوجود بھی دوری محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہم اوپر والے حصے میں رہتے تھے اور چاچو نیچے، مگر دن کا زیادہ وقت ایک ساتھ گزرتا۔ 2-3 مہینے گزرے تو دادا اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ پہلے ہی بیمار رہتے تھے، اس لیے انہوں نے سب کچھ پہلے ہی طے کر دیا تھا، مگر جاتے جاتے وہ ایک بات بار بار دہراتے رہے کہ اس گھر کی سب سے بڑی طاقت اس کا آپس کا پیار ہے، اسے کبھی ختم نہ ہونے دینا۔ ان کے الفاظ جیسے دیواروں میں بس گئے تھے اور ہر ایک کے دل پہ نقش ہو گئے تھے۔ دادا کے جانے کے بعد میرے بابا نے میرے نام سے ایک بہت بڑی کمپنی شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اکثر مجھے اپنے پاس بٹھا کے کہتے کہ جب تم بڑے ہوگے تو یہ سب تمہارا ہوگا اور تم اسے اور بھی آگے لے کے جاؤ گے۔ ان کی آنکھوں میں خواب تھا، ایک ایسا خواب جو میرے ذریعے پورا کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات چاچو سے کی تو انہوں نے بھی فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ یہی بہتر ہے، اس طرح مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ وہاں تک تو ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک پرانے بابا جی رہتے تھے، وہ کسی زمانے میں آرمی میں ہوا کرتے تھے۔ ان کا گھر سب سے زیادہ محفوظ تھا، لیکن پھر بھی میری ماں مجھے ان کے گھر جانے سے منع کرتی تھی۔ اصل میں ان کا ایک میرا ہم عمر پوتا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی اور بیٹے بھی تھے، مگر وہ سب بیرون ملک جا چکے تھے، اس لیے وہ اکیلے رہتے تھے۔ گھر کے باہر خاموشی ہوتی تھی، دروازہ اکثر بند رہتا تھا اور اندر ایک سناٹا سا محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی انتظار میں ہو۔ میں ان سے پہلی بار ایک پارک میں ملا۔ وہ ایک بینچ پہ اکیلے بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی مگر آنکھوں میں نرمی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور پیار سے باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک پوتا بھی ہے جو میری عمر کا ہے، مگر وہ ان سے ملنے نہیں آتا۔ یہ سن کے میرے دل میں ان کے لیے ایک عجیب سا درد پیدا ہوا۔ میں نے فوراً کہہ دیا، میں آپ کا پوتا بن جاتا ہوں۔ میری یہ بات سن کے ان کے چہرے پہ پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کسی نے ان کے دل کا بوجھ کچھ دیر کے لیے ہلکا کر دیا ہو۔ اس کے بعد میں 2-3 دفعہ ان کے گھر بھی گیا، ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کی باتیں سنتا اور وہ مجھے پرانے زمانے کی کہانیاں سناتے۔ لیکن ایک دن میری امی کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور نرمی سے سمجھایا کہ ابھی تمہاری عمر بہت چھوٹی ہے، تم کسی اجنبی کے گھر نہیں جا سکتے۔ میں نے ضد نہیں کی مگر دل میں ایک اداسی سی آ گئی۔ میں نے امی سے کہا ان کا نام انکل محمود ہے اور مجھے ان کے پاس جانا اچھا لگتا ہے۔ جب سے دادا گئے ہیں مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، میں ان کو ہی اپنا دادا سمجھ لیتا ہوں۔ میری بات سن کے امی کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے بیٹا، مگر ہر کسی کے گھر جانا مناسب نہیں ہوتا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ وہ بیمار رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں، اگر وہ میرے ساتھ تھوڑی دیر خوش رہ لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ میری یہ بات سن کے امی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، تمہارے اندر بہت احساس ہے، تم بہت اچھے بچے ہو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، لیکن ماما کی بات مانا کرو۔ اس کے بعد میں کم کم ہی ان کے گھر جانے لگا، مگر دل میں خلا سا رہنے لگا۔ کبھی کبھی میں دور سے ان کے گھر کی طرف دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے وہاں اب بھی کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، اور مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی۔ میری بہنیں بڑی تھیں، ان کا اپنا کمرہ تھا،
वो अपने कमरे में सोया करती थी, अम्मी अब्बू अपने कमरे में सोते थे। और अभी 1 महीना पहले ही मैंने ज़िद करके अपना कमरा लिया था, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो घर नहीं, एक पूरी हवेली थी। मेरे कमरे की दीवारें ऊंची थीं, खिड़की से आसमान साफ नजर आता था। रात को मैं अक्सर सितारों को देखते देखते सो जाता। उस रात भी मैं गहरी नींद में था कि अचानक एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पे गिरी हो। उस आवाज में एक अजीब सी कपकपी थी, जिससे मेरे दिल को हिला दिया। मेरी आंख खुल गई, मगर दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। मैं बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में हल्की सी तारीकी थी। दरवाज़ा बंद था और बाहर से आती हुई आहटें बढ़ती जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं सिर्फ खामोश बैठा रहा। मेरे अंदर इतनी अकल नहीं थी कि मैं खतरे को पहचान सकूं, मगर दिल बेचैन होने लगा था। अचानक दरवाज़ा तेज़ी से खुला और मेरी माँ भागती हुई अंदर आई। मैंने अपनी माँ को कभी इस हालत में नहीं देखा था। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जर्द था, आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और सांस तेज तेज चल रही थी। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने घबरा के उनकी तरफ देखा, मगर अल्फाज मेरे हलक में ही रुक गए। उन्होंने फौरन मुझे पकड़ा और जल्दी जल्दी बोलने लगी, मैं तुम्हें अलमारी में छुपा रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने बाहर नहीं निकलना। चाहे जैसी भी आवाज़ आए, तुमने आवाज़ नहीं निकालनी। और जब हर तरफ खामोशी हो जाए, तो तुम सीधा महमूद अंकल के घर चले जाना। मैंने मासूमियत से पूछा कि क्या हुआ है, क्यों माँ? मगर उन्होंने सख्ती से कहा, सवाल नहीं करो, बस मेरी बात मानो। उनकी आवाज़ में ऐसा खौफ था कि मैं मज़ीद कुछ न कह सका। उन्होंने मुझे अलमारी के अंदर बिठा दिया, दरवाज़ा बंद किया और आखिरी बार मेरे चेहरे को देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत भी थी और एक ऐसा दर्द भी जिसे मैं उस वक़्त समझ नहीं सका। दरवाज़ा बंद होते ही अंधेरा छा गया और मैं अपनी सांसों की आवाज़ सुनने लगा। कुछ ही लम्हों बाद मुझे बाहर से कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ें, चीखें और फिर कुछ अजनबी आवाज़ें जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं अपनी सांस रोक के बैठ गया। फिर मैंने सुना कि कोई मेरा नाम ले रहा है। वो लोग पूछ रहे थे कि शहरोज़ कहाँ है। मेरी माँ की आवाज़ आई। वो मजबूती से बोल रही थी कि शुक्र है वो तो अपनी खाला का घर गया है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी हिम्मत थी, जैसे वो अपने खौफ को छुपा रही हो। मैं मासूम बच्चा था और ये कैसे हो सकता था कि मैं वही बात करता जो मुझे कही गई थी। मैंने बहुत एहतियात से अलमारी का लॉक होता है जो, मैंने उससे बाहर झांका और किसी दूरबीन की तरह मुझे एक आदमी का हाथ दिखाई दिया, जिसके हाथ की एक उंगली शायद किसी हादसे में जख्मी हुई थी। उस पर ताज़ा ताज़ा पट्टी लगी हुई थी, यानी ये मालूम होता था कि उसकी एक उंगली नहीं, आखिरी उंगली, और शायद अब भी उसी के साथ ये कुछ हुआ था। बस यही पहचान थी मेरे पास, इतना ही मैं देख पाया। इसके बाद डर के मारे मैं पीछे हट गया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक एक चीख गूंजी। वो मेरी माँ की आवाज़ थी। इसके बाद अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे कुछ टूट रहा हो, जैसे कोई लड़ाई हो रही हो। फिर आवाज़ें धीरे धीरे कम होती गईं और आखिरकार सब कुछ साकित हो गया। मैं अलमारी के अंदर सहम के बैठा रहा। माँ की बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि बाहर नहीं निकलना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ना जाने कब मैं सो गया, या शायद बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अजनबी कमरे में था, मगर वो जगह मुकम्मल अजनबी नहीं थी। वो महमूद अंकल का घर था। मैंने इधर उधर देखा, फिर उनका अपने पास बैठा पाया। उनका चेहरा पहले से ज़्यादा संजीदा था, आंखों में गहरा दुख था। मैंने रोते हुए उनको सब कुछ बताया, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना। वो खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने आहिस्ता से मुझे बताया, हमारे घर पे हमला हुआ था, किसी ने सब कुछ तबाह कर दिया था। मेरे माँ बाप, मेरी बहनें, सब इस दुनिया से चले गए और मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सुन के मेरी दुनिया जैसे रुक गई। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं न चीख सका न रो सका, बस खाली नज़रों से उनको देखता रहा। मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं इस दर्द को समझ पाता, मगर दिल में एक बोझ सा बैठ गया। उन्होंने बताया कि मुझे वहाँ से निकाल के अपने घर ले आए और अब मैं उनके पास महफूज हूँ। मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, महफूज होने का मतलब क्या होता है जब अपना सब कुछ ख़त्म हो जाए। मेरे लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। मैं बार बार अपनी माँ को याद करता। उनकी आवाज़, उनका चेहरा, उनके आखिरी अल्फाज मेरे जहन में गूंजते रहते। मुझे लगता है जैसे अभी दरवाज़ा खुलेगा और मुझे गले लगा लेंगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हमला किसने किया, वो लोग कौन थे, क्यों आए थे, मगर एक बात वाज़ेह थी कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हमारा घर, हमारी जायदाद, हमारी गाड़ियाँ, सब कुछ किसी और के कब्ज़े में जा चुका था।
चाचू चाची इससे पहले ही बैरून मुल्क जा चुके थे। उनके गए अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ था और उसके एक हफ्ते बाद ही ये सब कुछ हो गया। अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई अपना नहीं था। महमूद अंकल ने मुझे अपने पास रखा। उन्होंने कहा तुम अब मेरे साथ रहो। मैंने फौरन हाँ कर दी क्योंकि अम्मी ने भी यही कहा था कि मैं उनके पास चला जाऊं। अब वही मेरे लिए सब कुछ थे, मगर दिल में अपने घर वालों की याद एक जख्म बन चुकी थी जो हर वक्त दुखता रहता था। मैं अक्सर खामोश बैठा रहता, खोया खोया सा रहता। मुझे समझ नहीं आती थी कि ज़िंदगी अब कैसे गुजरेगी, मगर एक बात मुझे महसूस होने लगी थी कि महमूद अंकल भी किसी गहरी फिक्र में थे। उनके चेहरे पे परेशानी साफ नजर आती थी, जैसे वो भी किसी बड़े बोझ के नीचे दिए हों। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मगर उस दिन उनकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो शायद आने वाले वक्त की खबर दे रहा था। महमूद अंकल ने मेरी तालीम जारी करवाई। उन्होंने कहा तुम स्कूल जाओगे, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में लगेगा तो ठीक हो जाओगे। तुम्हारे माँ बाप भी तो यही चाहते थे कि तुम पढ़ाई करो। उनकी आवाज़ में नरमी भी थी और एक मजबूती भी, जिससे वो मुझे टूटने से बचाना चाहते हों। सुबह वो खुद मुझे स्कूल छोड़ने जाते, रास्ते पर खामोश रहते, मगर उनकी मौजूदगी मुझे सहारा देती। क्लास में बैठता तो किताब के लफ्ज़ कभी साफ नजर आते, कभी धुंधला जाते, मगर मैं खुद को मजबूर करता कि मैं पढ़ूं, क्योंकि ये वही रास्ता था जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सोचा था। मैं अक्सर उनसे एक ही सवाल करता कि चाचू और चाची वापस क्यों नहीं आ जाते? अगर वो आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी आवाज़ में उम्मीद होती, मगर वो खामोश हो जाते। उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं था कि मैं उनसे राब्ता करता। अम्मी अबू होते तो शायद सब आसान होता, मगर वो इस दुनिया से जा चुके थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और मैं स्कूल जाने लगा। 3 साल इसी तरह गुजर गए। मैंने खुद को पढ़ाई में लगा लिया, मगर दिल के अंदर जो खला था वो कभी न भरा। महमूद अंकल ही मेरे लिए सब कुछ थे। वही मेरी हिफाजत थे, वही मेरी दुनिया थे। फिर एक दिन सब कुछ दोबारा बदल गया। जब मैं तकरीबन 10 साल का था तो महमूद अंकल भी इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद वो घर एक बार फिर खाली हो गया। वही दीवारें, वही कमरे, मगर सब कुछ बेजान। उनकी जिंदगी में उनकी औलाद कभी उनसे मिलने ना आई, मगर जैसे ही वो इस दुनिया से गए उनके बेटे आ गए। उनके चेहरों पे दुख कम और लालच ज्यादा था। उन्होंने आते ही घर पे कब्जा किया, हर चीज को अपने इख्तियार में लिया और फिर कुछ ही दिनों में उस घर को बेच दिया। मैं एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था जैसे कोई अजनबी हूँ। उन्होंने मुझे देखा और सख्त लहजे में कहा कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो गई है, अब यहाँ से निकल जाओ। उनके अल्फाज मेरे दिल पे चोट की तरह लगे। मैं कुछ न कह सका। मैंने बताने की कोशिश भी न की कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उनके लहजे ने मुझे खामोश कर दिया था। मैं उस घर से निकल आया। मेरे पास ना कोई जगह थी, ना कोई सहारा। मैं सड़क पे खड़ा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाऊं। आखिरकार मैं यतीम खाने चला गया और वही मेरा नया ठिकाना बन गया। यतीम खाने की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। वहाँ पे हर चेहरा एक कहानी था, हर आंख में एक दर्द छुपा था। कमरे सादा थे, बिस्तर एक जैसे थे और माहौल में एक अजीब सी उदासी बसी हुई थी, जैसे हर कोई कुछ खो चुका हो। मैंने वहाँ रहना शुरू किया, मगर दिल कभी वहाँ का नहीं हुआ। मैं अपने माँ बाप को याद करता, अपनी बहनों को याद करता और महमूद अंकल की शफकत को याद करता। वो सब लोग जो कभी मेरी दुनिया थे अब सिर्फ यादें बन चुके थे। फिर भी मैंने खुद को पढ़ाई में लगा दिया। मैं जानता था कि अगर मैंने कुछ बनना है तो यही रास्ता है। मैं किताबों में सर झुका के बैठा रहता और कोशिश करता कि अपने दर्द को भूल जाऊं, मगर वो दर्द हर वक्त मेरे साथ रहता। वहाँ अजीब अजीब कहानियां थीं, हर बच्चे की अपनी एक तकलीफ थी। कोई अपने माँ बाप से बिछड़ा, कोई छोड़ दिया गया और कोई मेरे जैसे सब कुछ खो चुका था। हर तरफ दुख था, हर तरफ परेशानी थी, और हर तरफ नाउम्मीदी का साया था। अपनों की याद बहुत आती थी और ये एहसास दिल को चीर देता था कि अब कोई अपना बाकी नहीं रहा। कोई ऐसा नहीं जिसके पास जाके दिल का बोझ हल्का किया जा सके। ये बात मैंने वहीं जाके समझी कि जिसने कभी रोशनी नहीं देखी होती उसे अंधेरे से डर नहीं लगता, मगर जिससे रोशनी देखी होती है वही जानता है कि अंधेरे का दुख क्या होता है। वक्त गुजरने लगा। मेरे पास मेरे घर वालों को ख़त्म करने वाले की सिर्फ एक ही निशानी थी, उसका वो हाथ जिसमें 5 की जगह 4 उंगलियां थीं। यही एक तस्वीर मेरे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गई थी, मगर एक निशानी के सहारे मैं उसे कैसे तलाश करता? ये सवाल हर वक्त मेरे अंदर गूंजता रहता। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरे अंदर एक आग भड़कती जा रही थी। मेरे दिल में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं जितना आगे बढ़ता उतना ही पीछे की तरफ खिंचता जाता था। वो रात, वो आवाजें, वो चीखें, सब कुछ वैसा ही ताजा था जैसे कल की बात हो। मुझे बार बार वही ख्वाब आता, हर बार मंजर वही होता। मेरी माँ भागती हुई मेरे कमरे में आती,
उनका चेहरा खौफ से सफ़ेद होता। वो मुझे पकड़ के अलमारी की तरफ ले जाती और जल्दी से अंदर छुपा देती। उनकी आवाज़ कांप रही होती, मगर वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती। फिर वो बाहर जाती, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती। मैं अलमारी के एक छोटे से सुराख से बाहर देखता। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता। फिर मैं उसे देखता, वो आदमी जिसने मेरी दुनिया ख़त्म की। उसका हाथ साफ नज़र आता, 4 उँगलियाँ और एक जगह खाली, जैसे वहाँ कभी उँगली थी ही नहीं। या शायद वो ज़ख्मी था। उस वक्त उससे हाथ से खून भी बह रहा होता। फिर वही मंजर शुरू हो जाता। गोलियों की आवाज़ें, चीखें, जलने की बू और एक ऐसा शोर जो मेरे दिल को चीर देता। मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं सिर्फ देखता रहता। और फिर अचानक मेरी आँख खुल जाती। मैं पसीने से भीगा हुआ सांस लेता हुआ अपने बिस्तर पर बैठा होता हूँ। ये ख्वाब मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। हर रात वही कहानी दोहराई जाती। हर बार मेरा दिल पहले से ज़्यादा भारी हो जाता। वक्त गुजरता रहा और मैं जवान हो गया। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। मेरे हाथ में डिग्री आ चुकी थी, मगर मेरे अंदर का खालीपन वैसा ही था। अब मैं यतीम खाने से निकलना चाहता था, क्योंकि वो जगह मुझे हर वक्त मेरी तन्हाई का एहसास दिलाती। मैंने नौकरी की तलाश शुरू की। ये आसान नहीं था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार मुझे एक नौकरी मिल गई। वो दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत का दिन था, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। नौकरी मिलने के बाद मैंने एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। वो फ्लैट सादा था, मगर वो मेरा अपना था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसमें ज़रूरी चीज़ें रखना शुरू की। एक बिस्तर, एक मेज़, कुछ बर्तन और चंद किताबें। वो जगह खाली थी, मगर मैंने उसे अपने लिए एक नई दुनिया बनाने की कोशिश की। अब मैं वहीं रहता था, अकेला मगर खुद मुख्तार। मेरी ज़िंदगी एक नई सिमत में चल पड़ी थी, मगर मेरे दिल के किसी कोने में वो पुराना ज़ख्म अब भी ताज़ा था। और वो 4 उँगलियों वाला हाथ अब भी मेरे जहन में ज़िंदा था, जैसे वो किसी दिन मेरे सामने आ जाएगा और मैं उस कहानी का अख्ताम खुद लिखूंगा। जिन लोगों के दिल टूटे हैं या जिन लोगों को बचपन के सदमे सहने पड़ते हैं, वो मोहब्बत की तरफ ज़्यादा मायल होते हैं। ये भी एक साइंस है। मैं एक दफ्तर में काम करता था और वो लड़की भी उसी दफ्तर में काम करती थी। उसका नाम सोनिया था। वो उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी थी, मगर उसकी शख्सियत में एक एतमाद था, एक अलग सी चमक थी। लोग कहते थे कि वो किसी अमीर बाप की बेटी है, और ये नौकरी भी उसे उसके बाप की सिफारिश से मिली है। उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, मगर वो खुद कुछ बनना चाहती थी, अपने नाम से पहचानी जाना चाहती थी। मुझे उसकी यही बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। वो बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ थी। उसकी बातों में संजीदगी थी, एक सादगी थी। जल्दी हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया और हम दोनों को साथ काम करना पड़ा। हम एक ही मेज़ पे बैठते, फाइलें देखते, मंसूबा बनाते और बातों बातों में वक्त गुजर जाता। कभी चाय पीते, कभी कॉफ़ी और कभी कभार खाने के लिए भी साथ चले जाते। वो हंसती तो लगता जैसे पूरा माहौल रोशन हो गया, और जब संजीदा होती तो उसकी आंखों में गहराई नजर आती, जो मुझे अपनी तरफ खींच लेती। कभी कभी मैं उसे उसके घर छोड़ने भी जाता। उसके पास अपनी गाड़ी थी, मगर उसे मोटरसाइकिल पर बैठने का शौक था। वो खुशी से मेरे पीछे बैठती। मैं उसके बाल हल्के हल्के उड़ते और वो रास्ते भर बातें करती रहती। उस लम्हे मुझे यूं लगता जैसे जिंदगी ने मुझे कुछ लम्हों के लिए सुकून दे दिया हो। मैंने उसका घर देखा। वो न्यू डिफेंस में एक बड़ा सा घर था। ऊंची दीवारें, खूबसूरत दरवाज़ा और अंदर की झलक से ही अंदाज़ा हो जाता कि वो वाकई एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। मैं कभी अंदर नहीं गया, मगर बाहर खड़े हो गई मुझे अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता मुझे सोनिया से मोहब्बत हो गई। वो सच्ची वाली मोहब्बत, जो दिल में खामोशी से जगह बना लेती है और फिर इंसान के वजूद का हिस्सा बन जाती है। हैरत की बात ये थी कि उसे भी मुझसे मोहब्बत हो चुकी थी, और शायद मुझसे पहले हो चुकी थी। हम दोनों के दरमियान अब एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई खेल नहीं था। हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए जुड़ चुके थे। हमने मोहब्बत का इजहार किया, और उसके सिर्फ 1 हफ्ते बाद ही हमने शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हम उन लोगों में से नहीं थे जो सालों मोहब्बत का खेल खेलते हैं और फिर आखिर में फैसला नहीं कर पाते। हम दोनों वाज़ेह थे। हम जानते थे कि हमें एक दूसरे के साथ रहना है। एक दिन उससे मुझसे कहा, मुझे अपने बाबा से मिलवाएगी। अगर मैं उन्हें पसंद आ गया तो हमारी शादी तय हो जाएगी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, आवाज़ में यकीन था। मैंने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हारे बाबा को पसंद ना आया तो फिर क्या होगा? वो पहले तो मुस्कुराई और बोली कि तुम क्यों पसंद नहीं आओगे? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मगर मैंने उससे कहा कि मुझे इस सवाल का सीधा जवाब दो। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। उसके चेहरे पे हल्की सी घबराहट आई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अगर बाबा ने मना किया तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी। उसकी बात सुन के मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी फैल गई,
मगर मैंने मुस्कुरा के कहा, मैं तुम्हें भगा के तो नहीं ले जाऊंगा। अगर तुम्हारे बाबा राजी नहीं होंगे तो मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। मेरी तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक एतमाद था, मगर उसके अल्फाज ने मुझे खुश कर दिया, क्योंकि उसने जो कहा वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। अब हम लोगों ने एक दिन मुकर्रर कर लिया। उससे कहा था कि संडे वाले दिन तो मेरे घर आना, मेरे वालिद साहब से और अम्मी से मिल लेना। बस मैं ही हूँ, और मैं भी उनकी शादी के बहुत साल बाद पैदा हुई हूँ, इसलिए मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते। मेरे बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। पहले हम किसी गंदे से इलाके में रहते थे। गंदा तो नहीं था खैर, लेकिन अब हम डिफेंस में रहते हैं। मुझे अपने बारे में ये सारी बातें पहले ही बता चुकी थी, और मैंने उसे अपने बारे में सिर्फ यही बताया कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैंने ये नहीं बताया कि मैं यतीम खाने में पला बड़ा हूँ। मैंने बस इतना कहा कि मैं एक अंकल महमूद के साथ रहता था। वो इस दुनिया से चले गए, और अब मेरी अपनी नौकरी है, और मैंने एक फ्लैट रेंट पे लिया हुआ है। हम दोनों साथ घूमते, साथ खाते पीते, होटलों में भी जाते, और हर मुलाकात में बातें शादी की तरफ चली जाती। कभी वो अपने ख्वाब बताती, कभी मैं अपने, और हम दोनों मिलकर मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते, जैसे हम पहले से ही एक जिंदगी जीने की तैयारी कर रहे हों। इतवार में अभी 2 दिन बाकी थे, और उन 2 दिनों में हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे से मिले तो उसने कहा कि शॉपिंग कर लेते हैं, तुम अच्छे से कपड़े ले लो, अच्छे से कपड़े पहन के आना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। हम शॉपिंग के लिए गए। वो मुझे दुकानों में लेके घूमती रही, कभी कमीज पसंद करती, कभी पेंट देखती, और फिर मेरी तरफ देख के मुस्कुरा देती। उसकी मुस्कुराहट में एक एतमाद था, जैसे वो पहले ही सब कुछ तय कर चुकी हो। मुझे उसकी ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो अक्सर ऐसी बातें कर देती थी जो शायद किसी और को अजीब लगे, मगर मेरे लिए वही बातें सबसे खास थी, क्योंकि वो मुझे समझती थी, या कम अज कम मैं यही समझता था। उसके साथ गुजरा हर लम्हा मुझे अपने लिए एक नई जिंदगी लगता। मैं जो हमेशा तन्हाई में जिया था, अब किसी के साथ जुड़ चुका था, और ये रिश्ता मेरे लिए बहुत कीमती बन गया था। मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई, और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास बन चुकी थी। बिल आखिर संडे आ गया, और सोनिया मुझे अपने घर ले गई। घर मैंने उसका बाहर से तो पहले से ही देखा था, आज मैं अंदर भी गया। वो लोग वाकई अमीर थे, लेकिन मैं किसी की अमीरी से मुतासर होने वालों में से नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इंसान मेहनत करे तो ये सारी चीज़ें हासिल कर ही लेता है। घर के अंदर दाखिल होते ही एक अलग सा माहौल था। हर तरफ सफाई और तरतीब थी। दीवारों पे महंगी पेंटिंग्स लगी थी। फर्नीचर भी बहुत नफीस था, मगर मेरे अंदर कोई मरूबियत नहीं थी। मैं खामोशी से सब देखता रहा, जैसे ये सब मेरे लिए सिर्फ एक मंजर हो। मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया गया। मेरे लिए चाय दीगर लवाजमात रखे गए। सोनिया भी वही बैठी थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। उसे आयशा से कहा, अभी बाबा आ जाएंगे। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम उठ के चली जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं मर्द हूँ, वो भी मर्द है, हम मर्दों की तरह बात कर लेंगे। वो फौरन बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाबा गुस्से के बड़े तेज हैं, कहीं वो कोई गलती ना समझ लें। और तुम भी तो कभी कभी गुस्से में सीधी बात उल्टी कर देते हो। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम वकील बन के बैठी रहोगी? वो भी हंसती और बोली, हाँ, मैं यहाँ ही हूँ, बस देख रही हूँ कि तुम दोनों की बात कैसे चलती है। इसके बाद कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, और हम दोनों कभी दरवाजे की तरफ देखते, कभी एक दूसरे की तरफ। सोनिया के वालिद के आने का इंतजार बढ़ता जा रहा था। मेरे अंदर भी एक अजीब सा सुकून और बेचैनी साथ साथ चल रही थी। मैं जानता था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का रुख बदल सकता है, इसलिए मैं हर लम्हा खुद को तैयार कर रहा था, जैसे किसी इम्तिहान का आगाज होने वाला हो। जैसे ही उसके वालिद साहब कमरे में दाखिल हुए, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उसके वालिद का नाम बिलाल था। बिलाल कोई ऐसा अनोखा नाम नहीं था जिससे फौरन याद आ जाए कि ये कौन है, मगर जैसे ही मैंने उनके हाथ की तरफ देखा, मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। वही हाथ था जिसमें 4 उंगलियां थीं, 5 की जगह 4। वक्त ने जख्म भर दिया था, मगर निशान अभी भी मौजूद था, और उस निशान ने मेरे दिल में दफन यादों को जिंदा कर दिया। वही रात, वही चीखें, वही गोलियां, वही दुनिया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। फिर जैसे ही मेरे दिमाग ने पूरी तस्वीर जोड़ी, सब कुछ मेरे सामने खुल गया। ये बिलाल कोई और नहीं था, ये मेरा चाचू था। वही चाचू जिनके साथ मैंने बचपन गुजारा, वही चाचू जिनके साथ हमारा घर एक था, और वही चाचू जो मेरे माँ बाप, मेरी बहनों और मेरी पूरी दुनिया के खात्मे में शामिल थे। मेरे हाथ ठंडे हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर मैंने अपने चेहरे पे कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मेरे सामने वो शख्स बैठा था जिसने मेरे घर को बर्बाद किया, जिसने मेरी माँ की चीखें छीन ली, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो मुझे पहचान नहीं पाया था।
शायद मेरी शक्ल बदल चुकी थी, शायद मेरी उम्र बदल चुकी थी। मैं वो छोटा बच्चा नहीं था, मैं एक जवान आदमी था जिसके चेहरे पे वक्त ने दाढ़ी भी छोड़ दी, मगर मेरे अंदर वही जख्मी बच्चा जिंदा था। सोनिया उस वक्त मेरे साथ बैठी थी और उसके वालिद यानी बिलाल मुझे गौर से देख रहे थे। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि तुम्हारा नाम पहले भी कहीं सुना हुआ लगता है। उनका सवाल मेरे दिल पे वार कर गया। मैं जान गया था कि अगर मैंने गलत लफ्ज बोल दिया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। मैंने खुद को संभाला और फौरन जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद शहरोज है। मेरे वालिद का नाम अब्दुल्ला था। मैंने झूठ बोला, मगर उस वक्त सच कहना मेरे लिए खतरा था। उन्होंने हल्का सा सर हिलाया और बात को वहीं छोड़ दिया, मगर मैं जानता था कि उनके जहन में कुछ चल रहा है। वो भी शायद शक कर रहे थे, मगर अभी तक कुछ साबित नहीं था। मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की और सोनिया की तरफ देखा। वो अब भी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बात बदलते हुए कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ में वही एतमाद था जो मैंने पहले बनाया था, मगर अंदर से मैं टूट रहा था। बिलाल ने मुझे गौर से देखा और कहा, मेरी बेटी की पसंद बुरी नहीं, मगर तुम्हारी नौकरी कुछ खास अच्छी नहीं। खैर, हम तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते में हम फैसला करेंगे। उनके लहजे में इख्तियार था और एक अजीब सा गरूर भी। मैंने सिर्फ सर हिलाया और खामोशी से उठ के बाहर आ गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैंने हवा में सांस लिया, मगर वो सांस मेरे अंदर नहीं जा रहा था। मैं सोनिया के घर के बाहर आके रुका। कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा। मेरे जहन में एक ही बात गूंज रही थी कि मेरी किस्मत मुझे इस जगह ले आई जहां से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। सोनिया ने मुझे बाहर आते देखा तो फौरन मेरे पास आ गई। उसके चेहरे पे परेशानी थी। उसने कहा, बाबा को देख के तुम्हारा चेहरा क्यों बदल गया? क्या बात है, कोई मसला है? मैंने उसकी आंखों में देख के कहा, कल मुझसे मिलना, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरी आवाज भारी थी मगर मजबूत थी। वो खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में सवाल रह गए। मैं वहां से चल पड़ा। मेरे कदम जमीन पे थे, मगर जहन कहीं और था। मैं जानता था कि अब मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पे आ गई है, और उस मोड़ के आगे सिर्फ अंधेरा था या फिर इंतकाम। मैं पहले से ही चुपचाप था। सोनिया मुझसे मिलने आई थी। वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में परेशानी थी और आवाज में घबराहट। वो कहने लगी, क्या बात है, क्या हो गया? बाबा ने तो हाँ कर दी है, फिर मसला क्या है? मैंने उसकी तरफ देखा, एक लम्हा खामोश रहा, फिर मैंने उससे पूछा, उससे कितनी मोहब्बत करती है? उसे फौरन कहा, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी में तुम हो। मैंने उसकी बात सुन के गहरा सांस लिया और कहा, अब मेरी बात गौर से सुनो। वो मेरे सामने खामोश खड़ी हो गई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने उसे बताया कि तुम मेरी कज़न हो, तुम्हारा बाप मेरा चाचू है, तुम लोग जिस घर में रहते हो, जिस कारोबार में हो, वो सब कुछ मेरा है। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। मैंने उसे बताया कि मेरा बचपन किस तरह छीन लिया गया, मेरे माँ बाप, मेरी बहनें, सब कुछ कैसे ख़त्म हुआ, और वो हाथ जिसकी 4 उंगलियां थी वही सब कुछ ले गया। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने घर में मेरा जिक्र सुना? उसे फौरन कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे बाबा का कोई भाई था या उसकी कोई फैमिली थी। मुझे कभी कुछ नहीं बताया गया। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो खामोश हो गई। उसके चेहरे पे उलझन थी और आंखों में खौफ सा आने लगा। वो अंदर से हिल चुकी थी। मैंने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मुझे दादा की वसीयत की वो कॉपी ला के देनी होगी जिसमें सब कुछ मेरे नाम है। मेरी आवाज़ सख्त हो गई। मैंने कहा कि मैं अपने माँ बाप का बदला लूंगा, मैं उनके साथ किया गया हर जुल्म वापस लूंगा। मैं उनकी ज़िंदगी नहीं लूंगा, मगर जो मेरा है वो वापस लेके रहूंगा। मैंने उसे सीधा देखा और कहा, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो फिर मुझसे कोई ताल्लुक ना रखना, ना मुझे मैसेज करना, ना मुझसे बात करना, ना मेरी तरफ देखना। मैंने ये कहा कि या तो मेरे साथ खड़ी हो जाओ या फिर उनके साथ। मैंने कहा कि जो बुराई का साथ देता है वो भी उसी बुराई में शामिल होता है। सोनिया मेरी बात सुन के टूट गई। वो रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो बार बार मेरी तरफ देखती रही, जैसे मुझे रोकना चाहती हो, जैसे मुझे समझाना चाहती हो, मगर मैं वहाँ खड़ा नहीं रहा। मैंने उसकी तरफ आखिरी नज़र डाली और वहाँ से उठ के चला गया। मेरे कदम तेज थे, मगर दिल भारी था। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी, मगर जहन में सिर्फ एक ही चीज़ थी, बदला। दिन गुजरने लगे। सोनिया ने मुझे ना मैसेज किया, ना कॉल की, ना मुझसे कोई राब्ता किया। मैं हर दिन इंतजार करता रहा, मगर उसका कोई जवाब ना आया। मैं समझ गया कि उसने अपने माँ बाप को चुन लिया है। ये बात मेरे दिल पे चोट की तरह लगी, मगर मैंने खुद को संभाला। मैं हर रात अपने फ्लैट में बैठ के वो मंजर सोचता, जब मेरी माँ मुझे अलमारी में छुपा रही थी, जब गोलियां चल रही थी, जब चीखें गूंज रही थी। मेरे जहन में वो हाथ बार बार आता, 4 उंगलियां। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उस हाथ वाले को ढूंढ के रहूंगा। मैंने अपने अंदर एक नया इंसान पैदा कर लिया जो सिर्फ एक चीज जानता था, इंसाफ नहीं, बदला।
मैंने दफ्तर जाना जारी रखा, मगर अब मैं पहले जैसा नहीं था। मैं खामोश हो गया था, मैं कम बोलता था, ज़्यादा सोचता था। हर फाइल, हर काम मुझे गैर ज़रूरी लगता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। मैंने अपने दिल में एक मंसूबा बनाया कि मैं आहिस्ता आहिस्ता उन सब के करीब जाऊंगा, उनकी कमज़ोरी तलाशूंगा, मैं उनके राजों तक पहुंचूंगा। सोनिया अब मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो एक रास्ता भी थी और एक दीवार भी। मैं हर दिन खुद से लड़ता कि मैं उसे माफ़ करूं या उससे दूर हो जाऊं, मगर फिर मैं खुद को याद दिलाता कि मेरे माँ बाप का अंजाम उस घर से जुड़ा है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने रातों की नींद कम कर दी, मैं अक्सर जागता रहता और छत को देखता रहता। मुझे हर वक्त लगता कि कोई मेरे आस पास है, कोई मुझे देख रहा है। मैंने अपने अंदर की कमज़ोरी ख़त्म कर दी। अब मेरे अंदर सिर्फ एक चीज़ बाकी थी, ज़िद और इंतकाम। मैं जानता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अब मैं रुकने वाला नहीं था। लेकिन 4 दिन बाद मुझे सोनिया की कॉल आई। उसने मुझे फिर से उसी जगह बुलाया जहाँ हम मिला करते थे। वो जगह अब भी वैसी थी, खामोश माहौल, हल्की हवा और दूर खड़े दरख्तों की सरसराहट। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो पहले से मौजूद थी। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी, चेहरे पर संजीदगी थी, आंखों में एक फैसला। उसे वो फ़ाइल मेरे सामने रखी। वो वही वसीयत थी जिसमें मेरे दादा ने सब कुछ मेरे नाम लिखा था। मैंने फ़ाइल को हाथ में लिया और कुछ लम्हे उसे देखता रहा, जैसे मैं अपने माज़ी को देख रहा हूँ जो बरसों पहले मुझसे छीन लिया गया था। सोनिया ने आयशा से कहा, बाबा इस वसीयत को कब से बदलवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वकील साहब हर बार एक बात करते कि अगर तुम्हारा भतीजा शहरोज़ इस दुनिया में नहीं है तो पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ, और वो भी असल वाला। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थकन थी, जैसे वो इन बातों से उकता चुकी हो। वो बताती रही कि वो लोग बार बार इस बात पे इसरार करते और हर बार कानूनी रास्ता बंद हो जाता। मुझे यूं लगा जैसे वो किसी और की कहानी सुना रही है, मगर हकीकत में वो मेरे ही जख्मों को खोल रही थी। मैंने सोनिया की तरफ देखा और आयशा से कहा, फिर तुमने मुझे चुन लिया? वो खामोश हो गई। फिर उसे सर झुका के कहा कि मैंने हक को चुना। तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी बहनों का क्या कसूर था? तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप का क्या कसूर था? उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए और मेरे अंदर का बोझ एक लम्हे के लिए हल्का हो गया। मुझे अजीब सी खुशी हुई कि जिस औरत से मैंने मोहब्बत की वो सिर्फ मोहब्बत करने वाली नहीं, बल्कि सच का साथ देने वाली भी है। इसके बाद मैंने अपने चाचू के घर जाने का फैसला किया। मैं अब तक कानूनी तौर पर सब कुछ अपने नाम मुंतकिल कर चुका था, क्योंकि मैंने जिंदा होने का सबूत भी दे दिया था और वसीयत भी मेरे हाथ आ चुकी थी। जब मैं उनके घर पहुंचा तो घर का माहौल बदला हुआ था। वही दीवारें, वही दरवाजे, मगर अब हर चीज़ में बेचैनी थी। मैं अंदर दाखिल हुआ और सीधा उनके सामने जाके खड़ा हुआ। उन्होंने मुझे देखा। उनके चेहरे पे पहचान का साया उभरा। मैंने उनको सब कुछ बताया, उन्हें याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। मैंने वसीयत उनके सामने रखी और कहा, अब ये सब कुछ मेरा है। मैंने सोनिया की तरफ इशारा किया और कहा कि ये भी मेरे साथ जाएगी और अब यही फैसला है। उनके चेहरे पे गुस्सा भी था, बेबसी भी, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। घर में शोर उठा, मगर मैं खामोश खड़ा रहा। मैंने सोनिया का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले आया। हम दोनों ने जाके निकाह किया। वो लम्हा सादा था, मगर उसमें एक मुकम्मल फैसला छुपा हुआ था। बिलाल कुछ न कर सका। उसकी ताकत, उसकी दौलत, सब बेमानी था। वो टूटा हुआ नजर आया। कुछ अरसे बाद खबर आई कि वो बीमार हो गया और फिर इस दुनिया से चला गया। उसकी बीवी की उसके बाद ज़्यादा देर ना जी सकी। जिंदगी एक बार फिर खामोश हो गई, मगर इस बार मेरे अंदर कोई तूफान नहीं था। अब मैं और सोनिया एक साथ थे। वो अक्सर खामोश बैठ के अपने माँ बाप को याद करती, मगर उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी। वो कहती थी, अब तुम्हारे माँ बाप और मेरे माँ बाप सब एक ही जगह हैं। वह आसमान की तरफ देखती और आहिस्ता से कहती कि अब वहाँ ही इंसाफ होगा। फिर वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराती और कहती, हमें अपनी ज़िंदगी में नफरत नहीं रखनी चाहिए। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, क्योंकि यही असल ज़िंदगी है। इंसान के पुराने गुनाहों की सज़ा भी उसे ज़रूर मिलती है। एक ना एक दिन कुछ ना कुछ होता है। आप किसी के साथ बुरा करके बहुत सारे साल ये सोच के गुजार सकते हैं कि ये तो अल्लाह ने सज़ा नहीं दी, लेकिन बिला आखिर इंसाफ ज़रूर होता है। देर लग जाती है, लेकिन जब इंसाफ होता है तो दुनिया देखती है और हकीकत सबके सामने आ जाती है। यही हमारी कहानी का निचोड़ है कि वक्त कभी किसी का कर्ज नहीं छोड़ता। हर अमल का हिसाब होता है, चाहे वो फौरन हो या बरसों बाद। इंसान समझता है कि वो सब कुछ भूल गया, मगर जिंदगी किसी न किसी मोड़ पे उसे वहीं वापस ला खड़ा करती है जहां से उसने गलती की होती है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था। मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, अपनी बहनों को खो दिया और अपने बचपन को भी खो दिया, मगर फिर भी मेरे अंदर एक चीज़ बाकी रही, और वो थी सच की तलाश और इंसाफ की उम्मीद। सोनिया मेरी ज़िंदगी में एक नया बाब बन के आई। वो मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो मेरे लिए एक सहारा बनी। उसे मुझे वो रास्ता दिखाया जहाँ मैं नफरत के बजाय सच को देख सका। मैंने कभी सोनिया को ताना नहीं दिया, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता,
बल्कि एक दूसरे को समझना और कबूल करना भी होता है। हम दोनों ने ज़िंदगी को एक नए अंदाज से जीना शुरू किया। हमने माज़ी को पीछे छोड़ने की कोशिश की, मगर उसको भूलना आसान नहीं था। अब हम साथ हैं, ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे माज़ी में दर्द है, मगर मेरे हाल में सुकून है, और यही सुकून मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुराई नहीं होता, बल्कि असल अंजाम वक्त तय करता है, और वक्त कभी गलत नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे वो ख्वाब नहीं आता, क्योंकि वो ख्वाब मेरे लाशऊर से आता था। इंसान के लाशऊर में वो यादें होती हैं जिनको या तो वो याद नहीं करना चाहता, या फिर अपने दिमाग से झटकने की कोशिश करता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम अपने लाशऊर से ही जाने जाते हैं, लेकिन हर इंसान अपने लाशऊर को दुनिया के सामने पेश नहीं करता। लेकिन अब मुझे वो बुरे ख्वाब नहीं आते हैं। सोनिया माँ बनने वाली है, और हमारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है।